हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? आई एम श्योर आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं आफ्टर वॉचिंग द सीरीज ऑफ इंस्पिरेशंस इन लाइफ. आई एम श्योर दैट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, समथिंग रेलिवेंट फॉर योर लाइफ एज वेल. बिकॉज जब भी आप एक वीडियो देखते हैं तो उसको एक वीडियो ही नहीं, एक इंसान की वो रियल स्टोरी है. अपने अपने सबने चैलेंजेस बताए हैं, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ जर्नी है जहां से आपको लाइफ लेसन्स मिलेंगे, लाइफ स्किल्स मिलेंगे, और यही हमारा स्टाइल है और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है. सो आई विश दैट you are going to watch all the recordings and also shower blessings on each one of us, because sometimes it is not easy to reach out. आज की जो हमारी स्टार हैं, गेस्ट हैं, वो बहुत दूर है. बट एज वी से दैट डिस्टेंस नेवर मैटर्स whenever you are in love and whenever you are connected. Isn't it amazing? We have never met but connected. और एक ही मैसेज में इतनी दूर से कोई कनेक्ट कर ले तो जिंदगी में और क्या चाहिए. सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर to welcome a very pretty and what should I say, kind hearted, very generous friend who has been an air hostess with Air India. And for almost all her life, she has served them and retired from them as well. So there will be lots of things to learn. So, most welcome, Radhika. How are you? Thank you very much, Richa, for inviting me for this session. I'm so grateful to you and I'm very excited about it because my life has been full of challenges. And if I can share and can give the lesson, all the credit goes to you. Oh wow. So this is what we are looking for. To start with, the very first thing I would like to know is that हम लोगों को तो आप इंस्पायर कर रहे हैं, मगर आपकी इंस्पिरेशन कौन है? I have lived my life in public industry. And I was meeting all sorts of people. I joined in 1977 and I was all of 19 and a half years old. Very fresh from the college. In fact, I hadn't finished my college when I was called for an interview to go from Delhi to Bombay. So my inspiration is like everyday incidents. And I learned every day, Richa. I studied in a Hindi medium school and I joined Air India Oh with my Mr. God. J.R.D. Tata. And Mr. J.R.D. Tata is like, he's a French man and he believed in speaking very good English and very grammatically correct English. And there I was from a Hindi medium school from Delhi, because in those days they had to take girls from all states. So Okay. that is how I happened to come. I came to Mumbai and I was very fresh and very naive, at that age, at 19 and a half, how girls are chirpy and everything. So they found that, bubbliness in me and kind of recruited me. That's all I feel. They never realized कि क्या अंग्रेजी बोलेगी, कैसे इंटरेक्ट करेगी और क्या इंप्रेशन छोड़ेगी. I think वो नहीं देखा था. वो देखा होता तो शायद I wouldn't have been an air hostess. So that's how I joined in 1977. And then every day I learned. In fact, I learned to speak English after joining Air India. माय गॉड, अमेजिंग. और कोई होता तो शायद पहले ही गिव अप कर देता कि कैसे होगा आगे का काम. इजंट बहुत इट? डर लगता था, बहुत बहुत. घबराहट थी एट टाइम्स, और बहुत कोशिश करती थी घर पर आकर कि मिल्स एंड बून के नॉवेल्स पढ़ती थी आके, और आधा समझ आता था, आधा नहीं समझ आता था. फिर भी यस. फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश. एंड देन आई हैड लॉन्ग हेयर, टू प्लैट्स, एंड दे सेड कि अब ऐसे जूड़ा बनाया तो उन्होंने बोला कि ये तो इतने फ्रिजी हेयर हैं और ये दे आर नॉट नीट ऑन द फेस, सो यू विल हैव टू कट योर हेयर. So she says, I have no choice, madam, that you have to go for your haircut. And they gave me the bob cut. ड्यूरिंग दैट टाइम वर यू अलाउड? आई मीन गर्ल्स को तो उस समय थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस रहे होंगे, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस और सब. Restrictions? My God. From Delhi, I came to Mumbai on a promise to my mother that, Mama, I haven't gone on an aeroplane और मुझे फ्री टिकट आया है मुंबई से. खाली मुझे बम्बई जाने दो, ये फ्री टिकट इस्तेमाल करने दो, and I'll come back. I'm not joining Air India. I'm not leaving Delhi. I'm not leaving studies. कुछ नहीं हो रहा.
So dad says, कैसे हो सकता है? मेरा डैड हवाई जहाज की एक तो फ्लाइट कर लेने दो, फ्री टिकट है। तो डैड सेड ओके, फिर कौन जाएगा साथ में? And tickets were very expensive. Those are 77 I'm talking about. So dad says, okay, I'll follow you by train. I'll come to Mumbai. You'll reach today and I'll reach tomorrow early morning. तो शाम को तुम, my cousin lives in Navy Nagar in Mumbai. तो उन्होंने Okay. उनको फोन किया कि भाई उसको एयरपोर्ट से ले लेना. But it was hard. And you won't believe, Richard, I believe in destiny. You know, Yes. destiny plays a big role. When you are destined for something, then the door starts opening for you. You know, Absolutely. little effort of yours and you get success. And Absolutely. It is both that's ways, है ना? If yeah, something is not meant for you, so no matter how much you try, there'll be no door and no absolutely. entry. Absolutely. Yes. And when I reached my Air India office, so dad was not allowed to come inside. We had an office at Santa Cruz East. So dad was waiting outside. There's a small tapri, वो वहाँ पे बटाटा वड़ा और चाय का Hmm. बस स्टॉल था. तो डैड वहाँ पे उनके बेंच के ऊपर बैठे रहे करीब 7 से 8 घंटे तक. और Oh. मेरा अंदर एक मॉर्निंग में एक बहुत सिंपल सा इंग्लिश टेस्ट हुआ, सिंपल इंग्लिश का टेस्ट हुआ. और उसका रिजल्ट उन्होंने इमीडिएटली बता दिया हमको आधे घंटे में. उसके बाद दे टोल्ड अस टू गो फॉर मेडिकल्स. So the test was, blood was taken, urine or whatever we had to do. And then we had a small interview with the chief air hostess. And our chief air hostess was Colleen Bhiladwala, if people know about her. Oh. She was something to look at. When I looked at that lady, I said, oh my God, where is she? Where am I? It was like, she was looking like a real princess, and she was a Parsi lady. You know how Oh, you Parsis must carry have been themselves? zapped, huh? Totally flabbergasted. Oh my God. And then from there, I thought, and then I made the Judy, over here, Hmm. or sari pehna hua tha. So she told me, she was also speaking Hindi, English, both. That was such a blessing to me. Okay. And then she just told me, are you willing to come to Mumbai from Delhi? She asked me very simple questions. Hmm. So, but I was very chirpy, in those days. I could never keep quiet. If somebody asked me a question, I would give long answers, like now also. And Hmm. you ask me a small question and I'll give you long answers. And I've been like this all my life. So she found me like, we can mold her kind of. She must have thought that. And then in the evening, I was told, okay, your training will be starting the next week. So you have about 3 days now. Do you have an arrangement to live in Mumbai? And all I said, ma'am, I will manage. And in those days, I was the one who was talking about, I didn't went, that kind of English I was Oh. speaking. I had Absolutely. no I clue can of imagine grammar. when So you are saying that you were from Hindi medium and then mediums. you were able to crack your interview. मतलब कितना प्रॉब्लम रहा होगा और कभी सोचा भी नहीं होगा कि आगे क्या होगा. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. और उसके फर्स्ट वीक में उन्होंने मेरे बाल काट दिए. एंड फ्रॉम रिचा फ्रॉम 77 Different till look. now I could never grow my hair. And when I first time went to Delhi, and my mother too made such a huge hue and cry in the house. ये क्या कर दिया, लड़की को बर्बाद कर दिया है आपने, इसको बंबई भेज दिया है, इसकी शादी कोई नहीं करेगा, सब बोलेंगे पता नहीं कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, क्या करती है. एंड मॉम थ्रू सच ए ह्यूज टैंट्रम. आई सेड मम्मा थोड़ा टाइम, मेरे को 6 महीने ट्राई करने दो, फिर Hmm. उसके बाद देखते हैं, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो मैं छोड़ के आ जाऊंगी. But Yes. my brother, he was a commander at that time in with Hmm. Indian Navy, and he sent बुआ जी आप चिंता मत करो, मेरे साथ है, मेरे पास है. बम्बई की लाइफ बिल्कुल अलग है, पर मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ. बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं. मतलब अभी इसने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं किया है और इसको जॉब मिल रही है. ऐसे इतना आसान नहीं है ये जॉब मिलना. और फिर मिस्टर टाटा की कंपनी है, तो मॉम को कन्विंस किया. भाई का बेटा कुछ बोलता है तो मम्मी को समझ में आता है ना. जल्दी मान जाते हैं. Absolutely तो true. ऐसा हुआ. और फिर आई कुड स्टे बैक इन दिल्ली एंड डैड वेंट बैक अलोन टू दिल्ली. And then from there, my bhabiji was very modern and very like concerned, and she had a small baby. My niece was just about 6 months old. So Okay.
अरे भाभी जी सेट, सर दिखा, तेरे सर में जू तो नहीं है, दिल्ली से आई है, तेरे सर में जुएं होंगी। और अरे ओह भाभी माय। जी ये क्या कर रहे हो? एंड व्हेन आई कट माय हेयर एंड सेज, देख तेरी शक्ल बदल गई है यहाँ पर आकर, तो तेरा तो जिंदगी Hmm. बदल जाने वाली है। सो आई गॉट So लिटिल बिट ऑफ this was like एनकरेजमेंट। the your entry in this particular industry, isn't it? Your arena. टोटली, एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। अगर हम शॉर्ट में बोले तो क्या आपकी इंस्पिरेशन आपकी पूरी फैमिली थी, उनका सपोर्ट था, या आप पूरा क्रेडिट अपने फादर को देना चाहेंगे? मैं पूरा क्रेडिट अपने फादर को देना चाहूंगी। रिचा, वी आर 6 sisters एंड अ ब्रदर, एंड वी यूज्ड टू लिव विद माय ग्रैंड पेरेंट्स। और हमारी जो दादी जी थी वो वेरी मच लाइक बॉयज बॉयज बॉयज, लड़का चाहिए घर में। तो ऐसे कर करके 4 बेटियां थी, फिर बेटा हुआ। फिर दादी बोलती है एक ही बच्चा है, मेरा भी एक ही बच्चा था, तेरा भी एक ही बच्चा है, तो एक बेटा और चाहिए। अब तो तू बेटा पैदा कर रही है, दूसरा बेटा भी पैदा हो जाएगा। देन आई गॉट अनदर 2 sisters, सो आई वी एम आर सिक्स श्योर सिस्टर्स अगर ये सब हम आज की जनरेशन को बताएंगे ना तो बहुत हंसेंगे, बिकॉज अब तो लोग एक बेबी के बाद ही बोलते हैं बस भाई, अब और नहीं। मेरे खुद के बच्चे हैं, मेरे खुद के बच्चों की कहानी सुनोगी तो तुमको मालूम पड़ेगा। माई हाँ। डॉटर इन लॉ टोल्ड मी, पहले तो 4.5-5 साल के बाद पहला बेबी आया। और जब मैंने उसको, जब पहला बेबी करीब 2 साल का था, तो मैं बोला रिद्धि सेकेंड वन, पागल हो क्या, आप पैदा कर लो। मैंने बोला एक से मेरी जान ले ली है, मेरे मैं दिन रात इसके पीछे ही रहती हूँ, मेरी अपनी लाइफ खत्म हो चुकी है, खत्म डा हो डा डा चुकी है, डा एब्सोल्युटली। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी? डा। Beauty is God gifted, whatever, if you call it beauty. If you feel I'm still beautiful, then it is God gifted. And a little bit of care, like everybody has to take care of themselves, you know. Yes. We girls, not today's girls, I don't say, but in our times we used to really neglect ourselves. हम लोग कभी भी ये नहीं कहते थे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारी स्किन के लिए अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट। अगर लाइफ बॉय मिला तो लाइफ बॉय से बाल धो दिए। आजकल की ओह। लड़कियां तो एक पर्टिकुलर शैम्पू होता है, लाइक मेरे को यस। सिर्फ ब्लैक में स्टाफ ही चाहिए या करता है, या so they have their particular brands and they take care of themselves. So I'm very happy about it, that now after so many years, but women have really come to the society. They have really reached where it was a man's domain, when the women have reached, and they're looking after themselves. They are as good as men, and there's no field left where women are not competing. So वाओ। I'm very happy about that. सो And ट्रांसफॉर्मेशन। women are absolutely, totally, and I am very much for that. A boy or a girl, कोई भी बच्चा हो, उसको उसकी मर्जी से जीने देना चाहिए, क्योंकि यस, you आई will अग्री। tell only ये तो खैर अगर। आपने बहुत अच्छी बात बोली है, बट डोंट यू फील कि अभी भी हमारे इंडिया में ही देर आर सो मेनी स्टेट्स वेयर वी फील दैट डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, यू नो, पीपल प्रेफर हैविंग अ बॉय rather than a girl. Haryana, Rajasthan, if you go into the deep into the Interiors, rural yes. areas, you will see वहां पर अभी भी ऐसी ऐसी पंचायत है जहां पर गर्ल्स born are not welcome. हरियाणा has come out of it because वहां पे 8 to 10 हो गया था. Girls were very few and there were many boys and they were not finding proper alliance. They They had to are go to not another even village. allowed to speak and share their thoughts and feelings. If there is बिल्कुल, a group of boys, they need to stay quiet. In fact, अगर family members में भी कुछ discussion चल रहा है, they are not supposed to participate in that. अभी भी it ये is there. dominance वाला सब चल रहा है. अभी भी है रिचा, हमारे रूरल विलेजेस में अभी भी ये चल रहा है। और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसकी ना, वी कैन जस्ट ब्रिंग अवेयरनेस if we people get some time. Whenever I visit some other state, I like to go to some village and all that. वहां पे मैं उनको सबको अपनी कहानी बताती हूँ Very कि good. मैं भी आपके जैसे एक छोटे से घर में पैदा हुई थी। फिर मेरे Hmm. डैडी की 6-7 बच्चे थे और वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, सिर्फ उनकी उस समय तो तनख्वाह सिर्फ 2,000 रुपए थी। फिर वहां से मेरी बड़ी सिस्टर ने नौकरी करी, वो पढ़ी लिखी। मैं माई डैड ऑलवेज वांटेड गर्ल्स टू बी एजुकेटेड, वो उन्होंने नहीं छोड़ा।
मॉम हमेशा बोलती थी कि स्कूल हो गया बस बहुत है, कॉलेज नहीं भेजना है. तो माय एल्डर सिस्टर्स वर नॉट सेंट टू कॉलेज बिफोर, two girls before me, and they got a job. So they took a job of a very mediocre job, like LD lower division clerk बन गए. दिल्ली में तो गवर्नमेंट जॉब्स इज लाइक a boon. बूम तो या वो लोग ने जॉब ले लिया. पर माय सिस्टर वाज एल्डर सिस्टर. आई ओके डोंट हैव लॉस्ट हर, but she did her graduation and post graduation correspondently, and she did not go to college, but she became a double postgraduate in Hindi and economics. वाओ She was so fond सो of दैट education. मीन्स अभी भी हमें अपने लेवल पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट दैट थिंग यू नो बिकॉज अगर अभी भी वो डोमिनेंस चलता रहा तो इट विल नॉट बी गुड ऑन आवर पार्ट अगर हम खुद अपने आप को अपलिफ्ट कर पाए हैं एम्पावर कर पाए हैं so it is our duty our responsibility to even give it back to the society तो जैसा कि राधिका जी ने बताया दैट अगर वो कहीं पे भी ट्रैवल करती हैं और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है एक छोटी सी वर्कशॉप एक छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम और अगर फॉर्मल वे में नहीं भी करना है तो जब भी आप किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं तो उनको छोटी छोटी अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर करके कुछ बताने की प्रयास करिए और उन्हीं के स्टाइल में उन्हीं की भाषा में करिए है ना ऐसा कुछ हम सबको करना पड़ेगा बहुत नहीं रिचा, कुछ आप हाँ वहाँ की एक छोटी सी स्कूल में जा सकते हो, या यस उनकी छोटी सी पंचायत में जा सकते हो. क्योंकि जब आप जाते हो तो दे वेलकम यू. इट दे इज नॉट वेलकम लाइक अस दैट. यस सब बच्चे आपके आसपास आ जाते हैं, दीदी आंटी वो उनको बातें पता करते हैं. चल जाता है ना अतिथि देवो भव वो वाला प्रिंसिपल तो सब वो जगह तो है है, अभी भी हम वो तो गेस्ट है. को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं उनकी है रिस्पेक्ट करते बिल्कुल. हैं वेलकम करते हैं माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत सारे आपने अपने लाइफ में खुद को चेंजेस करे ट्रांसफॉर्म करा इन ऑर्डर टू इक्विप योरसेल्फ एंड लाइक जो भी आपके रोल की रिक्वायरमेंट थी उसके अनुसार आपने बदलाव लाने की कोशिश करी बट आई एम श्योर कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी जिसको आप कभी भी चेंज नहीं करना चाहेंगी सो व्हाट इज दैट वन थिंग व्हाट यू वुड नेवर लाइक टू चेंज इन लाइफ मैंने तुमको बताया ना कि मैं बचपन से आज तक वैसे ही बबली हूँ. बबली इन अ वे, रेडी टू लर्न एंड रेडी टू टीच ऑल्सो. इट इज यस नॉट ओनली लाइक जो मेरे पास है दैट आई वांट टू रियली शेयर विद अदर्स, एंड व्हाट अदर्स हैव, व्हाटएवर आई कैन ग्रास्प फ्रॉम देम. You don't have to really follow what people say, but यस definitely give an ear. वाओ And that's what really helped me in my life for my development, because there was Wonderful. nobody. This reminds me of, like we say, sharing is caring. And I keep Really. telling my friends also कि कुछ ना कुछ ऐसा करो प्रोडक्टिव जहाँ पे शेयरिंग द स्किल्स के बारे में बात करो बिकॉज हर इंसान के पास कुछ ना कुछ स्किल है और जितना हम शेयर करेंगे उतना ही मल्टीप्लाई होगा सो वंडरफुल Absolutely. थॉट वंडरफुल आई लाइक्ड इट सो एज योर होल जर्नी with Air India especially like what were the kind of challenges or should I just put it like let me have a different question worst कोई worst experience बताइए अपना जो बहुत ही मेरा वर्स्ट मुश्किल रहा हो एक्सपीरियंस बहुत ही मुश्किल रहा जर्नी इंग्लिश सीखने की. सबसे अच्छा ज्यादा मुश्किल मुझे इंग्लिश सीखने में लगी, क्योंकि मेरी क्लासरूम में मेरा पूरा बैच था कैथलिक्स एंड पारसीज का, एंड नॉर्थ ईस्ट की 2-3 लड़कियां थी. तो ओके नॉर्थ ईस्ट की 1-2 गर्ल्स थी, उनकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, मेरे से तो बहुत अच्छी थी. पर जब हम छोटी टाउन से किसी मेट्रोपॉलिटन में जाते हैं तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस. यस But what happened is, like, I was very talkative and never felt shy to be corrected. अगर किसी ने मुझे करेक्ट किया तो मैंने ये नहीं बोला कि तुमको ज्यादा मालूम है. You take corrections gracefully and you say thank you very much, because my batch taught me English in 3 months. They really put in the efforts. Before I started, we used to have 3 months training for our air hostess training at on ground, and after 3 months we were released to fly. So my first flight, when I read before that, I think in those 3 months, there was a tremendous change in my way of speaking English. I was with the crowd of Parsis and Catholic girls, and they all helped me,
because I would interact with तो them. आई कैन से दैट जैसी हमें एनवायरनमेंट मिलती है उससे भी तो हम बहुत कुछ पिक करते हैं, बहुत कुछ, इजंट इट? absolutely. तो आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिली, आपको इंग्लिश स्पीकिंग गर्ल्स की एनवायरनमेंट मिली जहां से आपको इंकरेजमेंट बहुत मिला होगा, आई एम श्योर, एंड यू वर एबल टू पिक अप द थ्रेड्स फ्रॉम देयर। रिचा, ऐसा नहीं होता कि एनवायरनमेंट हमें मिली, अगर आप चाहो तो आप अपने आसपास ढूंढ सकते हो, देख सकते हो, क्रिएट कर कुछ तो सकते हैं, पॉजिटिव है, कुछ तो हमारे पॉजिटिव। आसपास कुछ तो पॉजिटिव है। तो इफ यू नो हाउ टू ग्रैब दैट पॉजिटिव, हाउ टू लर्न, एक छोटा बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा जाता है, और एक एब्सोल्युटली, गांव का बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा बहुत कुछ जाता है। सिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं सीख सकते, मॉरली कुछ सिखा जाएगा, स्पिरिचुअली कुछ सिखा जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो इफ यू pay attention and mingle with them, and and you become part of them, I'm sure it's both ways, you get something and you give something. This reminds me of two things. One is that it depends on what is it that you want to see in life, either the light or the darkness, isn't it? And the True. other thing is, जैसे जब मैं भी एज अ ट्रेनर ट्रैवल करती हूँ तो मुझे तो ज्यादातर ड्राइवर से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो ओला ड्राइवर्स हो, उबर ड्राइवर्स हो, या कहीं पे भी जब ट्रैवल करते हैं, छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे जो उनके लेसन्स होते हैं ना, वो हमेशा मुझे बहुत याद आते हैं, बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो कभी भी ड्राइवर को ड्राइवर की तरह मत ट्रीट करिए, है ना? आप और Absolutely. आफ्टर कोविड तो मुझे लग रहा है जितने ये ड्राइवर्स भी हैं सब इतने एडुकेटेड हैं, Yes. दे Yes, अपनी आर उबर ओला के एक्सपीरियंस्ड। ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू। दे आर एक्सपीरियंस, और किसी ना किसी फील्ड में तो उनकी मास्टरी, हर इंसान के पास किसी ना किसी फील्ड की मास्टरी होती है। यस। और कुछ नहीं तो ना, ये पता चल रहा है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, और जॉइंट फैमिली के क्या फायदे हैं। क्या हम फायदे लोग तो हैं? 25 लोग साथ में रहते हैं, घर बिल्कुल। छोटा है लेकिन सबको एक दूसरे का बहुत सहारा है। तो आपको पड़ता है कि चलो यार, मैं अपनी माँ से मिलाऊं, मासी से मिलाऊं, मामा के घर एक बार चक्कर लगाऊं। तो मुझे वो लगा था एक बार, वन गाय ड्राइवर टोल्ड में कि हम लोग 25 लोग एक छोटे से घर में रहते हैं। तो मैंने बोला, ओ गॉड, हम लोग तो 25 सब सब बिखर गए हैं, लाइक ना, सब सिस्टर्स चली गई, ब्रदर हैज शिफ्टेड समवे, पेरेंट्स वर अलोन। तो ऐसे सबसे एक एक माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि हम सब मिलें, और कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो सिखाई जाता है। Yes. Maybe that is the reason why we have started enjoying the theme weddings and why that trend is back, you know. अब जो लोग कहीं पे भी wedding होता है, so they usually go to a resort, उसको पूरा book up कर लेते हैं for 2 weeks or so, and all the relatives stay there. So that is the real fun, है ना? सबसे Yes. connect कर पाते हैं और तभी उनकी True. actually में दिवाली celebration होता है। Exactly. Interaction makes you Yes. do anything and Everything. everything. So if I look at your profile, it's like आपने पूरा अपना लाइफ एयर इंडिया को दिया और उसके बाद यू थॉट ऑफ डूइंग समथिंग इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो लाइक ऐसा कैसे आया आपके माइंड में? Actually, I got 2 years extension from Air India. They wanted me to continue flying for 2 more years, but only condition was that I'll be flying as junior most. And I was a senior most air hostess when I was retiring in 2015. So they say you will get the same salary of a general manager, but you will be flying as a junior most air hostess. So that was the only thing. And my boys were settled. My elder son is a wing commander with Indian Air Force. He joined NDA and he got married in 2009. The other fellow got married in 2018. So he was also a pilot when I retired, younger fellow. He became a pilot with Air India. Then he was going around with another pilot. He was having an affair with that girl. So they were all settled. I had no need to continue my job. So I thought, no, I will not continue, but rather I'll start something of my own. ओके। But after retirement, those initial years, you feel freedom, रिलैक्स। like यस। कुछ, कोई छुट्टी नहीं मांगनी है, कोई परेशानी नहीं है, जहां दिल करे, और फ्री टिकट्स मिलते थे एयर इंडिया से। तो मैंने सोचा कि, तो 2016 में मैं ऑस्ट्रेलिया गई, न्यूजीलैंड गई, फिर एवरी ईयर मैंने 4 धाम किया। फिर मैं वाह। हरिद्वार गई अच्छा। रिवर राफ्टिंग करने के लिए।
फिर मेरे को मतलब बंजी जंपिंग करनी। विश लिस्ट में जो जो चीजें थी आपकी। आई आई स्वेयर रिच, आई जम्प्ड ऑन टू दैट। ऐसे नहीं, मुझे कुछ काम नहीं करना। मैंने अपनी कंपनी फॉर्म करी, फिर मैंने बोला मैंने एक बार कुछ भी बिजनेस सेटअप कर लिया, फिर मैं बंद जाऊंगी फिर से, और यस, पैसे की भी जरूरत नहीं है ऐसी। और पैसा तो जितना कमाओ ना उतना ही कम होता है, तो उतना और कम होता जितना है वो जितना है, अगर उसमें आप हैप्पी हो, कंटेंट हो, तो बहुत होता है। ये तो माय चीज सन मैं सेज, चाहूंगी सब लोग प्लीज ध्यान से सुने, जो अभी अभी राधिका ने बताया, दैट पैसा जितना भी हो कम होता है। तभी आपको मैं बार बार बोलती हूँ, देर इज नो नीड टू रन आफ्टर मनी, जस्ट रन आफ्टर योर पैशन एंड फोकस ऑन योर वर्क। पैसा खुद फॉलो करेगा आपको। तो आप अपना अटेंशन उधर मत डाइवर्ट करिए कि मुझे ये काम करना है बिकॉज आई विल गेट मनी इन रिटर्न। नो, आपको दिल से काम करना आना चाहिए। और अगर हम इनकी पूरी स्टोरी ध्यान से सुने, so she is one lady who has devoted her full life at one place, like serving for one company. Isn't it amazing? क्योंकि आजकल की हम जनरेशन को देखें तो वो हर साल या हर 2 महीने के बाद स्विच ओवर करते हैं, जॉब चेंज करते हैं, सो दे कीप हॉपिंग। और अभी भी अगर मैं उनको बोलूंगी ना कि 2 साल से ये वहीं पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे देखेंगे, मैम ये 2 साल से कैसे एक जगह काम कर सकते हैं? और आपने तो टोटल इयर्स पूरा मतलब वहीं पे एंट्री लेवल पे स्टार्ट करा और वहीं से रिटायर हुए। माय गॉड, बहुत and it बढ़िया। was amazing. It was amazing because you grow from step to step if you stick to a company, and your loyalty also to the company. You learn loyalty basically, and then और and I सबसे am still. सबसे बढ़िया चीज जो आपने स्टार्टिंग में हमें बताई कि देखिए इनके पास इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं था। सो स्टॉप गेटिंग हेजिटेंट, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। और जब मैंने इनसे पूछा कि सबसे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन या चैलेंज क्या रहा, तो इंग्लिश स्पीकिंग। कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कैसे धीरे धीरे अपने आप को ग्रूम करा होगा कि अच्छे से फ्लुएंट स्पीकर बन जाए इंग्लिश की। बहुत बढ़िया मजेदार स्टोरी थी आपकी। बहुत अच्छा लगा सुन के। ये इनसाइट्स तो बहुत मुश्किल से पता चलती हैं सबके बारे में, है ना, मजेदार चीजें। और अभी भी मैं बोल सकती हूँ कि आप अभी भी बबली हैं और एनर्जेटिक हैं, enthusiastic लर्नर हैं। So keep up with the same traits. There is no need to change yourself. Be the way you are. And thanks a lot for sparing your valuable time. Thank you. Thank you so much, Richa. It was so nice talking to you. Thank you so much.